When did you came here? I came 2 days back. Okay. One day I stayed in a private campsite. Okay. I met few interesting people there from Dehradun and Delhi, and yeah, we had fun like about, volleyball and badminton. Okay. And then Where in did the you play morning, badminton? We have volleyball? we have all Okay, the you- facilities inside that camping site. Okay. Where did you stay? That is near Shivpuri. Shivpuri. Okay. So So you took the package. yeah, I took a package and How much does it cost? it costed me 1,200 rupees. 1,200 rupees. Yeah, That's maybe nice. I could have bargained little bit better Okay. because of I And- checked with other guys there. So yeah, So- it was okay, not Okay. so great, but it's okay. But the best part of that package is like they offered 14 kilometers of river rafting from Shivpuri. Okay. That was an amazing experience, I could say. That was my first river rafting, and we had so many like up and downs in the streams. That was really fun. I have done rafting, so I know how he feels, and it's a really great experience to enjoy rafting. And other than that, he also did camping, right? With them. Yes, Did you? yes, I stayed with them in the Okay. campsite for one night. Okay. Yeah, he stayed with them for like in the camp for the one night, and he enjoyed that volleyball thing also. So how many people were there? There were around 20 guys. Oh, that's a great thing. Like I think 1,200 is just fine if you are going for rafting, camping, and also Including going, food and all. including game food and all. activities. And the major thing is you're going to meet 20 new people whom you can interact and learn, Yeah. and you can make friends with them. The most important thing right now, like Vicky Yes. and we are going to know each other, and I think we will stay in touch later also. Of course. Right now, we are about to reach Ramjula, but I don't even remember this path right now. Maybe it's changed or somehow, I don't know. But like you can see, there is so much greenery over here. Weather is really chilling now. Yeah, It was weather very is chilling cool because in there the was morning. rain yesterday. Yeah, even in the morning. In the morning, yeah. Yeah. Yesterday night and morning, there was a good amount of rain, and I think it's a quite better weather right now. Like few days back, it was quite cold, but right now you can enjoy this weather. So Vicky, like we met on cow surfing, there were other people also. So do Hopefully you think? we may meet them. Yeah. Maybe at near Ramki Jula or next maybe at Triveni Ghat. Yeah, that's Like the thing. we interacted like around 4 or 5 people in the couch surfing local hangouts. Yeah, I think we should update the suggested location at that hangout. Yeah, I suggest. Right now it is Lakshman Jula, so Yeah, Renu will be in. there is Renu will be there there is one at girl Ramki also, Jula in 10 and minutes. She just updated. okay, where will she come? Ramki Jula. Ramchula, okay. So there is a girl that Rainy, she will join us at Ramchula, and other people we have no conversation with them. We have no communication with them right now. They are not interested, I guess. So let's see how it goes. Yeah. And we're going to attend Aarti too. His plan is to attend Triveni Ghat Aarti. So I'm gonna just give him some suggestions and also ask him why he want to visit that Triveni Ghat Aarti. So what is your plan? Like why do you want to visit? So when I came to know about Rishikesh, the first thing that comes into mind is like Rishikesh is the world yoga capital. Okay, yeah. So that triggers me that I could find some peaceful environment here, and also I searched. I got to know that Aarti at Triveni Ghat will be very pleasant to watch. Like the one Aarti I watched earlier was only at Varanasi, Okay. where Dashashwamedh Ghat. Okay. It is an eye feast, I could say. Like you will see like thousands of people sitting together and witnessing the Ganga Mata's Aarti and Okay. blessings. So that was really pleasant to experience. So the he Aarti, want and to so I wanted to see how it will be in Rishikesh also. Okay. So my suggestion is that like there are so many places over here, like Paramath Niketan,
Okay. and there is one like at the opposite side of Parmat Niketan. I don't remember the name, but I think that's the best aarti right now that's going over here. And for the Triveni Ghat, I think that's quite similar to Triveni Ghat. Maybe. So- but the thing is, Triveni Ghat is known for the Triveni Ghat Sangam, is- the Sangam, where the Ganga, Yamuna, Okay, and so Saraswati, he wanted to three visit. rivers will meet there. Okay, so he So wanted that's to see also one that. interesting point. Yeah. So I wanted to That's fine. give a visit. That's fine. So we will see how it goes. How we're gonna be there. If he is interested, maybe we will surely go there. And one thing I'm gonna ask right now: are you comfortable in Hindi? Yeah, I can understand Hindi. I can speak good Hindi. I don't say I know. I'm very. If you're good in Hindi, we can talk in Hindi right now because. चलो बात करते हैं हाँ, हिंदी में. क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक आपसे इंग्लिश में इसलिए बात कर I रहा met था. that girl in that German bakery. She ओके told me. ओके. Okay. सो मैं अभी तक इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा था, मुझे लगा ये लाइक साउथ से हैं तो हिंदी उतनी नहीं अच्छे से आ रही. हैदराबाद वाले को हिंदी पक्का आता है. अच्छा आता है, तो अब ये मैं अच्छे से याद रखूँगा क्योंकि मेरे को भी काफ़ी साउथ के इधर के मिले थे, सो लाइक जो आए थे केदारखंड ट्रैक पे. Okay. सो So उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी एंड हिंदी में थोड़ा सा बात करने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से कन्वर्सेशन इंग्लिश में रखी क्योंकि मेरा जो ब्लॉग का लाइक ऑडियंस है वो सब हिंदी वाले ही हैं. हमारी इतनी कन्वर्सेशन अभी जो है इंग्लिश है, देखते हैं कितनी yeah, आएगी. Alexandra, I would like to know how is your experience at Kedarkant trek that you did. हाँ, तो केदारखंड ट्रैक का एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा है कि सबसे पहली बात है कि मैं कुछ बजट ट्रैवलिंग करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया वहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी केदारखंड ट्रैक के लिए जाओ तो अपने अगर आप खुद से भी प्लान कर रहे हो तो शूज़ और जो आपके ट्रैम्पोलिन हो गए, ट्रैम्पोलिन होते क्या होता है कुछ ट्रैम्पोन्स और गेटर्स, ये मस्ट हैं. ठीक है, क्योंकि आप और स्टिक Raiders मतलब spike shoes, right? नहीं गेटर्स इट्स लाइक दिस लाइक Ankle सम length. no yeah ankle length like some they just like kind of a cloth उसके आस पर रैप कर देते हैं जिससे आपकी जो बर्फ़ होती है ना वो अंदर ना जाए. Okay. हाँ, got it. तो ये होता है. और गेट जो ट्रैम्पोन्स हो गए वो जूतों के नीचे लगते हैं ताकि आपका स्लाइड ना हो शूज़, और शूज़ भी आपके स्पाइक्स हों तो वो ज़्यादा बेटर है. I heard that we can even rent them out हाँ near हाँ the बिल्कुल रेंट Sankri कर सकते village. हैं. हाँ, लेकिन बात यही है कि जैसे कि हमने रेंट करने के लिए गए थे Okay. तो मैं अवॉइड कर रहा था शूज़ लेना, तो क्यों? क्योंकि मुझे इस शूज़ पे ट्रस्ट था अपने. और ये शूज़ अभी आपको जिस हालत में दिख रहे हैं ना, इस हालत में थे ही नहीं. ये बिल्कुल इसके सोल वोल सब अलग हो गए थे, पूरे भीग गए थे. अभी ये मैंने कल जाके सिलवाया, तब जाके ये अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आया है. सो क्योंकि काफ़ी अच्छे जूते हैं मेरे, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ करता था, तो मैंने इसको हटाया. लेकिन हाँ, मैंने इनके साथ ज़्यादती करी बचत करने के चक्कर में, और इसी चक्कर में मेरा सबमिट भी रह गया. तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप करो तो इतनी तैयारी ज़रूर करके जाना, तभी आप सबमिट पूरा कर पाओगे पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में. तो अलेक्जेंद्र, आप कौन सी ट्रैक कंपनी से ये ट्रैक की? मैंने किसी कंपनी से नहीं करी थी. सो मैंने जैसे आपको बताया कि काउ सर्फिंग में ही मिल गए थे 3. हाँ. ओके. सो तो हम वहाँ पे चारों गए, वहाँ पे हमने वहाँ पे एक गाइड ले लिया वहीं का विलेज का. ओके. आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ खड़े होगे तो वो अपने आप ही आ जाएंगे कि तो आप कितना दिए हैं गाइड के? गाइड के हमें पड़ा 1000 रुपीज़ पर डे. हमने 3 दिन में ट्रैक किया तो हमें 3000 रुपये पड़े. एंड 3 जने थे तो वो स्प्लिट हो गए, हमें 1000 रुपीज़ पर हेड पड़ा. ये गाइड का पड़ा. एंड जहाँ पे हम रुके थे वो भी हमें काफ़ी चीप पड़ा, लाइक उन्हीं के ही उसमें था विलेज में होम स्टे, वुडन होम स्टे था वो. सो काफ़ी बढ़िया. स्टे का प्राइस कितना पड़ा है आपको? वो हमें लाइक 800 पड़ा था 4 पर्सनस के लिए. बाद में एक पर्सन उससे चला गया था तो हमें 600 पर मतलब पड़ गया था, मतलब लाइक हमें 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा, तो काफ़ी वो चीप रहा. तो ओवरऑल सब कुछ मेरा बजट ट्रैवल का ही था, लेकिन उसके चक्कर में मेरा सबमिट मिस हो गया क्योंकि मैंने शूज़ लेने में थोड़ी सी. आप सबमिट नहीं देख पाए हो? नहीं, मेरा सबमिट रह गया. बेस कैंप तक मैं गया हूँ, खाली पेज तक? बेस कैंप तक. लेकिन बेस कैंप तक का भी चढ़ाई कोई कम नहीं है, और बर्फ़ आपको बेस कैंप में भी खूब अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी. ओहो. तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मिस तो जरूर किया. बेस कैंप के लिए आपको 3 दिन क्यों लगा है? मैंने सुना था कि
2 दिन में ट्रैक खत्म होगा। 2 दिन में ट्रैक ख़त्म होना उन लोगों के लिए ठीक है जो लाइक जिन्होंने पहले से ट्रैक्स कर रखे हैं। ओके। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, आपने कौन सा ट्रैक करा? आज तक कोई ट्रैक करा आपने? मैं साउथ में मैनी ट्रैक्स कर चुका हूँ, लाइक तड़ियंडमोल Okay. and near that Coorg and तो कितनी चढ़ाई होती है I did उनकी? Gokarna track and locally I did a few tracks in Hyderabad and nearby areas and Okay. in Araku I did a track. उनकी चढ़ाई कितनी होती है आपके हिसाब से? मैक्सिमम में जो किया है वो आई थिंक इट इज़ लाइक मतलब 4000 meters. ओके 4000 4000 मीटर से लगभग कितना फीट हो गया? फीट हो गए आई डोंट नो। तो मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कितने फीट, मतलब लाइक फीट में तो याद है, मीटर में याद नहीं है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। बट चढ़ाई मैं वैसे नहीं पूछ रहा था, मैं आपको पूछ रहा था कि जो आप रास्ता जैसे चढ़ रहे थे तो वो कितना स्टीप रास्ता होता? तो पूरा मिलके 10 किलोमीटर तक था, अच्छा, जो वो भी पूरा नहीं स्टीपनेस पूछ रहा था मैं। स्टीपनेस ही। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पीक तक हमको पूरा चढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो तड़ियंडमोल ट्रैक, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट वन आल्सो। आई डिड दैट इन द लाइक मंथ ऑफ सितंबर वेयर देयर विल बी गुड ग्रीनरी अराउंड इट। ओके, मैंने जो करा था ये केदारकंड का या हम लोगों ने करा, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है जूड़ा का तालाब। या और वो काफ़ी मतलब जुड़ा तालाब है, वो पूरा जमा पड़ा है, पूरा बर्फ से। हाँ बर्फ़ से जमा पड़ा है। ओके। ठीक है, बस साइड से थोड़ा सा खुला हुआ है, वहीं पे पानी आपको दिखता है तालाब का, वरना पूरा वो जमा पड़ा है। ठीक है, आई थिंक शायद गर्मियों में पूरा वो खुल जाता होगा, पर विंटर ट्रैक होता है फेमस सी केदारकंड, हाँ तो आई थिंक उतना ही जमा रहेगा अभी, तो आगे भी थोड़े दिन, क्योंकि अभी तो बर्फ़ और गिरेगी वहाँ पे। तो अलेक्जेंद्र आप फूड कैसे मैनेज किया ट्रैकिंग पे? हाँ, उसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं था वहाँ पे। प्लान तो हम वैसे अपना भी पूरा करके गए थे, लेकिन वो एक पर्सन बैकआउट हो गया, उस वजह से थोड़ा सा हमारा प्लान चेंज हुआ। लेकिन वहाँ पे आपको जगह जगह पे आपको स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको मैगी, बन आमलेट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। मतलब टी पॉइंट्स आपको मिलेंगे हर 1.5 से 2 किलोमीटर पे, सो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम आपको चलने की है, और सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। पानी वहाँ पे बहुत बेशकीमती है। ओके, पूरा गीला हो जाएगा। गीला नहीं, हाँ। पीने का पानी, पीने का पानी। ओके। ड्रिंकिंग वाटर आपको लाइक कई जगह पे ऐसा होगा कि 10 रुपये में बोतल भर लो, और जैसे जैसे आप ऊपर भरोगे चलोगे तो आपको 50 रुपये की बिस्लरी की बोतल देंगे, चाहे आप ऐसे ले लो चाहे गर्म करके ले लो। तो इट्स बेटर टू कैरी 2-3 बिस्लरी बॉटल्स विद वो आप डिपेंड करता है कि कितना वेट उठा सकते हो। पर मतलब लाइक वही है कि वहाँ पे आप कितना भी कर लो, अगर आपके पास अपना कुछ स्टोर हो तो बेटर है कि अपनी बर्फ़ उठाइए और उसको उबाल के पी लिया, या कुछ इस तरीके से। और जितना भी आप खाने का और इस चीज़ का अपना लेके जाओ उतना बेटर है। और एक चीज़ मैं आपको कह रहा था कि एक और चीज़ मैंने मिस करी, वो था कि संकरी का पे होती है इंडिया की हाईएस्ट जिप लाइनिंग। हाँ, वो तो मेरे को नहीं मालूम है। हाँ, तो ये तो और कर चुके हैं जिप लाइनिंग? मैंने जिप लाइनिंग नहीं, मैंने वैसे भी नहीं करी है जिप लाइनिंग, पर वहाँ की मैंने मिस करी। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि ये मिस कर दी 2 चीज़ें। तो कोई नहीं, हर की धुन ट्रैक का भी जाएंगे तब करेंगे जिप लाइनिंग पक्का। तो वहाँ पे हर की धुन का भी जाता है ना रास्ता पूरा। तब कर रहे हो हर की धुन ट्रैक? अभी कुछ प्लान नहीं करा है, देखते हैं। अभी तो इसी ट्रैक में अच्छे खासे पैरों की लग गई थी, तो कप अलग हो गया तो अभी वो काफ़ी रिकवर हो गया। 3-4 दिन से रेस्ट ही चल रहा था यहाँ पर ऋषिकेश में। तो फ्रेंड्स, मेरे को अभी लगता है, अभी अलेक्जेंद्र बोलने के बाद मेरे को लगता है मैं भी केदारकंद ट्रैक कर पा सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो, ठीक है। बाकी आई थिंक इन्होंने जैसे बता रहे हैं काफ़ी ट्रैक कर रखे, ऑफ कोर्स ये मेरे से तो बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जिसमें ये सब मैंने किया, लाइक मेरे पास उतना वेट भी नहीं था, मतलब बैक्स और ऐसा। मेरे जो फ्रेंड्स लेकिन जो थे वो इतने फिट थे कि लाइक 30-35 kgs बैग अपना पीछे कैरी करके लेके जा रहे हैं। पूरा मिलके 15 kg तक होगा लगेज। साथ में आपको वो भी लेके जाने पड़ेंगे ना सामान जो आप रेंट, तो लाइक स्लीपिंग बैग होता है।